Good morning. We are going to start with the topic assessment. Assessment in education. Assessment in education. Assessment means to assess. Assess करना या simple words से विच evaluate करना या और simple words से विच measure करना. ठीक है. ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਟਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨॉन ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਜਾਂ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ. ਸੋ स्टूडेंट्स का डाटा जोड़ा है उसको ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं गैदर एंड एनालाइज. ठीक है. उस डाटा को गैदर करते हैं और उस डाटा को ਅਸੀਂ एनालाइज करते हैं, फिर उस डाटा को ਅਸੀਂ यूज करते हैं फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस. सो स्टूडेंट्स नाल जुड़िया होया एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, करिकुलर, नॉन को करिकुलर, वो सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उस डाटा को यूज करते हैं फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस या फॉर इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस. बच्चों की परफॉर्मेंस यूज करना, टीचर की इफेक्टिवनेस इंप्रूव करना. ठीक है. सो सिंपल वर्ड्स में दिस इज assessment. To gather, analyze and use the students' data for improving their performance and also for improving the effectiveness of teaching learning process as well as the teaching. ठीक है ना. ये है simply this is called assessment. ठीक है. So इतने डाटा जो यूज करते हैं that data is empirical data. एम्पीरिकल डाटा मींस ये डाटा ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ डाटा ਨੂੰ टीचर ने खुद कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ टेस्ट्स. ठीक है ना. उन टेस्ट क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं जो टीचर सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और क्वांटिटेटिव जेडे पेपर लेगा. सो टीचर की ऑब्जर्वेशन भी है तो टीचर ने लए हुए क्लास टेस्ट या दूसरे टेस्ट भी. सो एम्पीरिकल डाटा होएगा फर्स्ट हैंड डाटा जो टीचर ने खुद कलेक्ट किया है, कितों डाटा नहीं ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ. ठीक है. सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿव ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿव ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ डाटा ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਅਚੀਵ ਹੋਏਗੇ. ਆਰ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ अचीव्ड और जो ऑब्जेक्टिव लेके चले सी ये अचीव हो गए कि नहीं. ठीक है ना. सो दिस इज असेसमेंट. ठीक है. गैदरिंग द स्टूडेंट्स डाटा फॉर द एजुकेशनल गोल्स. एजुकेशनल गोल पूरा करने ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ डाटा ਲੈਣਾ. एजुकेशनल गोल हो सकते हैं, क्लासरूम गोल्स हो सकते हैं, रिसर्च के गोल्स हो सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग के गोल्स भी हो सकते हैं. ठीक है ना. सो दैट इज ਅਸੈਸਮੈਂਟ. लेकिन ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ क्लासरूम ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ. ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ लेकिन पहला दो तरीके डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव. फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट है असेसमेंट दैट इज गोइंग ऑन जो चल रही है. सो फॉर्मेटिव असेसमेंट जी है जी असेसमेंट लगातार चल रही है, गोइंग ऑन है.
कंटिन्यूअस है, इट इज इन प्रोसेस ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, ਜੇ ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो समेटिव असेसमेंट की है एट द एंड या टर्मिनल लिख देते हैं, टर्मिनल, और दूसरा वर्ड एट द एंड और टुवर्ड्स द कंक्लूजन, जो काम खत्म हो जाए उसको बाद। ठीक है ना। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट which is going on continuously and is in a process, summative assessment which is terminal or which is done at the end of the instruction या mainly end of the semester और year तो बाद summative assessment जड़ी है वो की थी। ठीक है ना। चलो थोड़ा जैसे बारे देखते हैं। Formative assessment जड़ी है it is conducted to continuously monitor the performance of students. So to continuously monitor the performance of the students to determine how the students are learning. Determine how the students are learning. ये कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। How the students are learning? To determine how the students are learning, what the students are learning, और whether they are learning something or not। ठीक है, सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। Formative assessment to continuously monitor the performance of students to determine how the students are learning, what the students are learning, और whether they are learning anything or not। कुछ समझ आया भी है कि नहीं है। ठीक है ना। सो इसकी खास फीचर है फीडबैक। सो बच्चे ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ फीडबैक ਜਿਹੜੀ है वो मिलती रहती है। जो जो बच्चे पढ़ते रहते हैं त्यों त्यों उन्होंने ਅਸੀਂ टेस्ट करते रहते हैं, त्यों त्यों एक्टिविटीज करवाते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने फिर ऑब्जर्व करते हैं, उन्होंने ਅਸੀਂ मॉनिटर करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे ਨੂੰ लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही, किस लेवल तक कर रहे हैं, कितनी लर्निंग हो रही है, 50% हो रही है, 90% हो रही है, कि मैथड बदलने की लोड़ है, कि बच्चों ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कमी है, कि करिकुलम ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कमी है, वो सारा कुछ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। सो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। So features of formative assessment। सब तो पहला है कंटिन्यूअस। तो पहली इंपॉर्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है दैट इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअसली लगातार डे बाय डे चलती है। क्लास टेस्ट होंगे, स्कूल टेस्ट या जो यूनिट टेस्ट करने हो होंगे, उस तो बाद मिड टर्म्स होंगे एंड सो ऑन। इस तरीके के नाल लगातार जड़ा है बच्चे ਨੂੰ कंटिन्यूअसली असेस करते हैं। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस या नाल लिख लो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि डिफरेंशिएट करना आसान होएगा समेटे के नाल ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और व्हेन द टीचिंग लर्निंग इज गोइंग ऑन। जब काम चल रहा पढ़ाई का उस वेले फॉर्मेटिव असेसमेंट आती है एंड इट इज कंटिन्यूअस, लगातार चलती जाएगी। दूसरा हमने पॉइंट लिखा है इट गिव्स फीडबैक। सो फीडबैक नाल दी नाल स्टूडेंट्स ਨੂੰ भी मिलती जाती है ते टीचर ਨੂੰ भी।
स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ नहीं आया, या फिर कितने कितने प्रॉब्लम एरियाज रह गए, वो सारा कुछ टीचर ਨੂੰ की मैथड चेंज करने की लोड़ है, कि ज़्यादा एग्जांपल्स और डेमोन्स्ट्रेशन देने की लोड़ है, वो सारा कुछ आ जाए। सो फीडबैक इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये भी कंटिन्यूअसली आती जानी है नाल दी नाल, क्योंकि रोजाना या कुछ वीक्स के बाद टेस्ट हो रहा है और बच्चों को नाल दी नाल फीडबैक मिल रही है। ठीक है, दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल फॉर्मेटिव असेसमेंट फ्लेक्सिबल है। वो किस तरह, बच्चे दी कमियां पता लग रही हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम पढ़न पढ़ाने का तरीका बदलिया जा सकता। ठीक है, सो ये फ्लेक्सिबल तरीका है असेस करने का। जे इनू कंपेयर करिए समेटिव दे नाल, समेटिव दे विच की होएगा, फ्लेक्सिबल नहीं है, दैट इज वेरी रिजिड। एक स्ट्रक्चर बनया हुआ है, ਉਹਦੇ मुताबिक मार्क्स या परफॉर्मेंस या ग्रेड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ, ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So continuous है, it gives feedback, it is a flexible process। ठीक है, flexible है। उस तो बाद है diagnostic। diagnostic एक लेसन होया ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, दूसरा लेसन होया ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ। हर टेस्ट तो बाद बच्चे ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ पता लग रही है, उन पता लग रहा है कि कितने, अगर मैथमेटिक्स है तो बच्चा की कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, कि उन्होंने मल्टीप्लिकेशन टेबल समझ नहीं आ रहे, कि वो अरिथमेटिक और अलजबरा दे विच डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। उन ये जी प्रॉब्लम्स जड़ियां वो टीचर समझ सकता फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस। उन्होंने दी गलतियां जड़ियां उन्होंने तो टीचर को पता लगेगा कि कितने प्रॉब्लम कितने वीकनेस रह गई है। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोसिस लई भी इसका इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ। वैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक टाइप हुई है, ठीक है ना। सो ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ डायग्नोसिस ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट भी पूरी तरह ਨਾਲ एक्टिव है, वो पढ़ भी रहा है और फीडबैक लेके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने ਦੀ कोशिश भी कर रहे हैं। उस तो अलावा बहुत सारिया एक्टिविटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ पार्ट लेना भी ਉਹਦੇ ਲਈ कंपलसरी है, ਉਹਨਾਂ छुप नहीं सकता ਉਹਨਾਂ एक्टिविटीज़ को, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इस दौरान स्टूडेंट इज ऑलवेज एक्टिव। ठीक है, एक्टिव है या ऑन दी टोज कह सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को पता है कि आज लेसन खत्म होया है, कल टेस्ट होना ही होना है, सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। सो स्टूडेंट ऑन दी टोज रहता है, हर वेले एक्टिव रहता है। ठीक है, then it forms basis for modification of instruction, modification of instruction। ठीक है, so टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट के बेसिस के उत्ते अपनी इंस्ट्रक्शन का तरीका जड़ा है उसको बदल सकता है। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट।